Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss next topic of unit 2nd, that is triangle of vector addition. This is most important topic. ज़्यादातर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ 4 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਅ, ਟੂ vectors are represented both in magnitude and direction। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਦ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰੋ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਡ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੇਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂੰਛ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਦੂਸਰੀ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ, ਫੇਰ ਦੀ ਟੇਲ ਫੇ ਹੈਡ। ਅਗਰ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਲ, ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਹੈਡ। ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਟੇਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ ਟੇਲ ਹੈਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬੋਥ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਦ ਟੂ ਸਾਈਡਸ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਰੋ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਪੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਊ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੈਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਦਾ ਥਰਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ ਆਫ ਦ ਟਰਾਇੰਗਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਟੇਲ ਆ, ਆਹ ਹੈਡ ਆ, ਆਹ ਟੇਲ ਆ, ਆਹ ਹੈਡ ਆ। ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਲ ਆ, ਆਹ ਹੈਡ ਆ, ਆਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਹ ਐਰੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਐਰੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਮੀਟ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲ ਮੀਟ ਕਰਤੀ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਮੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਡਨ। ਸੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਅ, ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬੋਥ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਈ ਦ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਅ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਟਰਾਇੰਗਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ। ਡਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ,
सो असी जिद्दां पहलां चूज़ किया सी एक ए वैक्टर और एक बी वैक्टर, ठीक है। दोनों की आ सेम ऑर्डर दे विच, मतलब टेल दे हैड, इधर टेल ते इधर हैड। सो दो वैक्टर्स लिते, रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ओ पी एंड पी क्यू। डन। सो असी थर्ड लाइन बनाई इस तरह, विच इज़ द रिजल्टेंट एंड इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट मतलब टेल दे नाल टेल ते हैड दे नाल हैड मीट कर रहा। सो इन्हां दोनों के विचकार जो एंगल बन रहा दैट इज़ एंगल फाई। फाई मतलब इदा करके आ वाली लाइन, या सिंपल असी इस तरह भी रिप्रजेंट कर दें, ठीक है। सो इन्हां दोनों के विच साडा फाई एंगल बन रहा। हुण ध्यान दो, इत्थे की आ साडा ट्रायंगल लॉ। हुण ट्रायंगल तो इत्थे बन रहा है, बट जो असी सॉल्व करना है सानू किसी एक पर्टिकुलर बेस, हाईपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर किसी का ना किसी का आंसर पता होना चाहिए। सो सानू इत्थे किसी का आंसर नहीं पता। सो असी की करन लगे, अपने वालों इत्थे डॉटेड लाइन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करन लगे। सो इस तरह असी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिता। लेट अस दिस पॉइंट इज़ डी, कैपिटल डी। डन। सो इस तरह करके एक होर तुहाडा छोटा जिहा ट्रायंगल बन गया। हुण देखो ये इस तरह की ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के नाल असी पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस पूरे मैथड नू सॉल्व करांगे, ठीक है। सो नैक्सट देखो हुण किस तरह लिखांगे इनू। सब तो पहला असी लिखांगे जो रिजल्टेंट आ, रिजल्टेंट किहदा कॉम्बीनेशन आ, ए एंड बी दा। सो असी इत्थे लिखिया आर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। सो उपर वैक्टर पाना ना भुलना। नैक्सट असी इत्थे लिख देना वी हैव प्लॉटेड पी डी लाइन एंड क्यू डी लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू ओ डी लाइन, ठीक है जी। सो इन्नी चीज़ लिख के सो असी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करन लगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम दे विच की हुंदा है, परपेंडिकुलर दा स्क्वायर मतलब ओ क्यू दा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस तुहाडा की आ ओ डी, ओ डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तुहाडा की आ क्यू डी। सो दिस इज़ क्यू डी स्क्वायर। डन। सो हुण ध्यान नाल देखो, जो तुहाडी ओ डी लाइन आ, ओ तो लैके डी तक दी लाइन आ, वो दो पार्ट्स दे विच डिवाइड आ, ओ तो लैके पी तक, पी तो लैके डी तक। सो असी की लिखन लगे आ, ओ डी की जगह ते की लिखन लगे आ, ओ पी प्लस पी डी दा होल स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। सो ओ क्यू स्क्वायर एज सच लिखा रहता, ठीक है जी। सो इनू इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। हुण ध्यान ना देखो, ओ क्यू नू सॉल्व, ओ क्यू की वैल्यू सानू पता आर है, ओ पी की वैल्यू सानू पता ए है, पी डी की वैल्यू पी तो लेके डी तक की वैल्यू सानू नहीं पता, क्यू डी की वैल्यू सानू ये भी नहीं पता। हुण असी की करांगे, पी डी और क्यू डी की सब तो पहला वैल्यू फाइंड आउट करांगे। सो सब तो पहला असी की करांगे, एक छोटा वाला ट्रायंगल चूज करन लगे आ वाला ट्रायंगल। याद रखना जो भी असी छोटा ट्रायंगल सॉल्व करते हैं तो असी साइन एंड कॉस की वैल्यू लगा कर सॉल्व करते हैं। जो असी वड्डे ट्रायंगल की गल करते हैं तो असी टैन लगा के उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। सो असी की कर रहे हैं, सब तो पहला पी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने एक बार असी कॉस लगावांगे, एक बार असी साइन लगावांगे। सो लेट अस सपोज असी सब तो पहला कॉस थीटा लगा रहे हैं किहड़े वाले ट्रायंगल के उपर, पी डी क्यू के उपर। इत्थे लिख भी सकते हैं इन ट्रायंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू के उत्ते कॉस थीटा की वैल्यू लगान लगे। वट इज़ कॉस थीटा? कॉस थीटा किहदे इक्वल हुंदा है, बेस डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज। सो बेस तुहाडा की आ पी डी, सो इहदी जगह ते लिख दिता पी डी डिवाइडेड बाय हाईपोटेन्यूज तुहाडा की आ पी क्यू, सो इहदी जगह ते लिख दिता पी क्यू। डन। सो कॉस थीटा की वैल्यू तुहाडे को की आ गई पी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू। सो पी क्यू नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया, तुहाडा पी डी का आंसर आ जाएगा पी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ पी डी सॉल्व हो गया। सो पी डी ਤੁਹਾਡਾ सॉल्व हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ क्यू डी सॉल्व करना। सो क्यू डी सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज़ करांगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ ਆ, अगेन इन ट्रायंगल छोटी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं पी डी क्यू, पी डी क्यू। पी डी क्यू ਦੇ ਵਿੱਚ साइन थीटा किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ ਆ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
हाईपोटेन्यूज। नाउ वट इज़ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तुहाडा की आ DQ और हाईपोटेन्यूज तुहाडा की आ PQ। ठीक है जी। सो PQ नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया, DQ का आंसर कितना आ गया तुहाडा PQ साइन थीटा। डन। हुण ध्यान दो PQ की वैल्यू कितनी आ, PQ की वैल्यू कितनी आ B वैक्टर। सो असीं इत्थे लिख दिता B साइन थीटा। सो सानू DQ की वैल्यू भी पता लग गई। सिमिलरली हुण असीं की करन लगे आ, पुट PD एंड DQ इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 तुहाडी की सी आ वाली। सो आप ये पुट करन लगे। हुण ध्यान दो OQ की वैल्यू कितनी आ R। सो OQ की वैल्यू कितनी आ तुहाडी R। सो आप इत्थे लिख दिता R स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, नैक्सट देखो OP की वैल्यू तुहाडी कितनी आ A प्लस, नैक्सट देखो तुहाडी P तो लैके D तक की वैल्यू असी हुणे सॉल्व करके हटे हैं। P तो लैके D तक की वैल्यू कितनी आ, PQ की जगह ते असी B लिख सकते हैं। सो आ गया B cos थीटा। सो PD की जगह ते असी की लिखन लगे हैं B cos थीटा दा होल स्केयर प्लस लास्ट विच देखो तुहाडा की है QD। हुण QD की जगह ते तुसी सॉल्व कर चुके हैं। QD का आंसर तुहाडा कितना आया सी B साइन थीटा। सो इत्थे आ गया B साइन थीटा दा होल स्केयर। डन। नाउ ओपन द ब्रैकेट, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। ठीक है, तुसी आ वाली ब्रैकेट ओपन की। हुण सिमिलरली इनू ओपन करके देखो, दिस इज़ A स्क्वेयर, एक ही आ जाएगा B का स्क्वेयर तो साइन का स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर थीटा आएगा, थीटा के उपर स्क्वेयर नहीं आएगा क्योंकि साइन थीटा एक ही वर्ड होंदा। ठीक है, जो इसका स्क्वेयर लगावांगे तो साइन के उपर स्क्वेयर आएगा, थीटा के उपर स्क्वेयर नहीं आएगा। हुण नैक्सट देखो इसका मैगनीट्यूड जो असीं सॉल्व किया। सो असीं की करन लगे हां, लास्ट वीडियो दे विच लास्ट इक्वेशन दे विच साडे कोल की आ गया। सो ब्रैकेट ओपन करन लगे हां, A स्क्वेयर B स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। हुण ध्यान दो B स्क्वेयर कॉमन बाहर निकालन लगे हां। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की रह गया cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। सो असीं लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा। आ टर्म बच गई, इनू इत्थे लिख दो प्लस 2AB cos थीटा। हुण तुसी 10th दे विच करके आए हैं हुणे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी हुंदी आ 1। सो आपां इहदी जगह ते डायरैक्ट की पुट कर दिता 1। फाइनली साडे कोल की आ गया A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, ये थोड़ा R का वैल्यू आ गई। सो R स्क्वेयर हटा दो, दूसरे पासे चले जाएगा अंडर रूट। सो फाइनली वी गेट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। डन। सो इहदा ही सब पार्ट है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सो असी डायरेक्शन किद्दां पता करनी आ, डायरेक्शन पता करने लिए असी पूरा ट्रायंगल चूज़ करांगे, पूरा वाला ट्रायंगल चूज़ करांगे, वड्डे वाला ट्रायंगल। सो इनू असी tan दे नाल सॉल्व करांगे। tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तुहाडा की आ DQ डिवाइडेड बाय बेस की आ तुहाडा OD। परपेंडिकुलर की सी तुहाडा DQ डिवाइडेड बाय OD। डन। सो हुण ध्यान नाल देखो आप इहदी वैल्यू की पुट करांगे। DQ नूं असीं होर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा लिख दिता। O तो लैके D तक देखो दो पार्ट्स विच डिवाइड हो रहा। सो असीं लिख सकते हैं OP प्लस PD। हुण ध्यान दो DQ की वैल्यू पुट करनी है। DQ की वैल्यू असीं हुणे सॉल्व करके हटे हैं। सो देखो DQ का आंसर कितना आया सी, DQ का आंसर आया सी B साइन थीटा। सो आप इत्थे की पुट करन लगे हां B साइन थीटा प्लस OP, O तो लैके P तक की वैल्यू कितनी आ A। सो असीं पुट कर दिता A प्लस PD की वैल्यू असी
ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਪੀ ਡੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਬੀ cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀ cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ tan phi ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। tan ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इज़ दैट क्लियर बच्चे? इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, ध्यान ना समझियो। थैंक यू।